Namaskar, I am Prakriti Rekha Kalve, vocalist, music teacher, professional anchor, and the director of Sadsur Academy. Music is my passion and as well as sadhana for me. My motto in life is through my musical discourses, I would like to enlighten music lovers all over the world about the connection between our ancient heritage and music. India has been a nation rich in art, culture, and music for centuries, and music has always represented the socio-cultural development of society. We Indians, whenever we think about Veena, the first and foremost picture that comes in our mind is Veena Vadini, Veena Dharini, Ma Saraswati. So come with me, let me take you on this wonderful journey of Veena. Singing, playing an instrument, and dancing, all three arts are included under Indian classical music. There are two main styles of Indian classical music. First, North Indian or Hindustani style. Second, South Indian or Carnatic style. Veena is the oldest music instrument in the rich tradition of Indian classical music, and it has the honor of the national instrument. In the Carnatic style of music, as compared to North Indian music, the use and the prevalence of Veena is very high. The Veena is considered to be the mother of string instruments of Indian origin. Instruments in which the sound is produced by vibrating the strings are called Tatvadya or Tantravadya in Hindi and string instruments in English. The origin of the word Veena is from the Varn Dhatu of Sanskrit. Varn means to speak. Veena is known as Ban, Van, Been, Bin, etc. And Veena players are called Vainika and Beenkar. In the ancient time, Veena was the general term for the string instruments, and Veena is a category of string instruments. Indian classical music has always been associated with god and goddesses. According to the belief of Hinduism, Mahadev Shiv is considered the originator of music. देखिए ये एक बहुत पौराणिक कथा है और उसके पीछे एक बहुत बड़ी एक माइथोलॉजिकल स्टोरी ये है कि भगवान शंकर हमारे आदिदेव महादेव जो है संगीत के प्रणेता भी वही हैं, वाद्य प्रणेता भी वही हैं। तो माता भगवती पार्वती वो लेटी हुई है, उनको देख करके उनके अंदर एक परिकल्पना पैदा हुई है और उससे हमारे रुद्र वीणा की उत्पत्ति, उसका नाम इसीलिए रुद्र वीणा पड़ा, रुद्र भगवान भोलेनाथ शंकर। तो उन्होंने इसकी सबसे पहली जो हमारी वीणा है वो हमारी रुद्र वीणा है जो भगवान भोलेनाथ। First of all, Veena was created by Lord Shiv, seen goddess Parvati in laying position. It was named Rudra Veena by the name of Shiv and dedicated to Parvati. The Veena held by Devi Saraswati has so many names like Saraswati Veena, Kachapi Veena, Gyan Veena and Raghunath Veena. Apart from Devi Saraswati, Shivputra Ganesh, Goddess Parashakti and Goddess Mathangi also have been depicted with Veena. Narad Muni,
who chants Narayan Narayan used to play Mahati Veena, and the sage Agastya was an exponent of Veena. Music was so highly developed in the Vedic period so that musicians and scholars composed Upved Gandharva for music. Both the words Ban and Van mentioned in Vedas. The whole Samved is musical. There were so many types of Veenas popular at that time as Kandveena, Godha Veena, Kapi Shirshani, Pichola, Taluk, etc. An amazing fact, our body has also been considered as Veena and called Devi Veena, Gatra Veena and Mukh Veena. और जितने हमारे तारवाद्य होते थे, स्वरवाद्य होते थे, उनको सबको वीणा था। चाहे वो हमारा कोई भी बात नहीं, चाहे वो हमारा, हम आज के सितारों के अगर लें, वो भी वीणा है। हमारा अब देखिए सारंगी, सब सौरंगी, उसका जो पुरातन नाम है, प्राचीन नाम है, वो है पिनाकी वीणा। पिनाकी नाम भी भगवान शंकर का ही है। शततंत्री वीणा, संतूर, इस तरह से हमारे जितने तारवाद, इवन ये मानव शरीर, इसको गात्र वीणा कहा गया। हमारे मुंह को, क्योंकि स्वर हमारे मुख से निकलता है, मुख वीणा शास्त्रों में नाम है। तो वीणा वो वाद्य है जहाँ से स्वर की उत्पत्ति होती है। इसके प्रणेता, इसके जो जन्मदाता हैं हमारे भगवान भोलेनाथ शंकर। In the Aitrik Aranyak of Rigved has shown beautiful harmony between Devi Veena and Manushi or man-made Veena. According to another belief, the concept of bow-shaped instrument, which is called harp in English, has come from the bow of a hunter. The sound of the string of the bow had probably been the reason behind the invention of Veena. We can see the historical Veenas, harp, lute and stick zither in the sculptures of Amravati Stoop, Ajanta caves and Devalaya, Sri Lanka, and in the coin and seals as well. In the Ramayana period, Lankapati Ravan was also a skilled Veena player and had a competition with sage Agastya. Ravan Hatta, a string instrument which is popular in Rajasthan, has been named after Ravan. Lava Kush also presented the Ramayana in the court of Sri Ramchandra by playing Veena. In the Mahabharat period, Vipanchi, Vallaki, Kachapi, Saptatantri, Parivadini and Mahaveena were very popular. The description of Veena is found in Draupadi Swayamvar and other festivals. In the Natya Shastra, Bharat Muni has given detailed discussion on Matta Kokila, the main Veena, and Chitra, Vipanchi, Ghoshak and Kachapi Veena as well. An excellent information about Veena is also found in Buddhism, Jain and the literature of Kalidas. Tamil language and literature have the pride of antiquity in South Indian culture. In Tamil literature, the Veena has been called Yas. The structural description of Veena and Yas is almost the same. The 19-string Veena, Makaryas and Vilkoti were very popular during that period. एक ही प्रकार की कि अनेक प्रकार की वीणाएं हैं हमारे पास? वीणा के प्रकार तो बहुत सारे, लेकिन मूल वीणा एक ही है। स्वर जैसे एक ही है, सारे गम पता नहीं, उसको आप चाहे अपने गला से गाएं, चाहे पंडित भीमसेन जोशी गाएं, बड़े गुलाम अली खान साहब गाएं, चाहे बिस्मिल्लाह खान साहब बजाएं, चाहे हम गाएं, चाहे आप गाएं, तो उसी स्वरों को अवतारना होती हैं विभिन्न ये पर वीणाओं पर। तो कोई कच्छप वीणा नाम रख दिया है, कोई वीणा नाम रख दिया, लेकिन मूल वीणा वही एक ही है। The Saraswati Veena is one of the major type of Veena today. The others include Chitra Veena, Vichitra Veena and Rudra Veena. Out of these, Rudra Veena and Vichitra Veena are used more often in Hindustani music, while the Saraswati Veena and Chitra Veena or Gottu Vadyam used more frequently in the Carnatic music of South India.
है यानी सरस्वती वीणा पर आज हम चर्चा करेंगे वीणा वादन की समृद्ध परंपरा से आने वाले प्रख्यात कलाकार श्री एस राधाकृष्णन जी का। नमस्कार सर। नमस्कार जी। मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। धन्यवाद। सर, कैन यू थ्रो लाइट ऑन द ओरिजिन ऑफ वीणा एंड व्हाट आर द मेन टाइप्स ऑफ वीणा? See, origin since time immemorial is something very difficult to answer. One way of understanding, ये देववाद्य है, ये इंसानों से बनाई हुई नहीं, ये चली है देवलोक से, एक प्रसाद के रूप में मानव समुदाय को मिली है ये। अब जब हम विभिन्न संगीत के ग्रंथों को या हमारे जो पौराणिक श्लोक हैं जिनका मौलिक आधार है, उसके आधार पे मैं बता सकता हूँ कि वीणा जो है वो माँ सरस्वती के हाथ में भी, अन्य देवियों के और अन्य देवों के भी हाथ में है और ये विभिन्न विभिन्न नामों से प्रख्यात हैं। जैसे ये तो सरस्वती वीणा है, इसको कच्छपी भी बोलते हैं, जैसे आपने बोला जी। जैसे विभिन्न प्रकार के वीणाओं को बोलते हैं विश्ववसुस्तु बृहति, बृहति नाम की वीणा विश्ववसु के हाथ में है। तुम्बुरोस्तु कलावती, तुम्बुरु के हाथ में कलावती नाम की वीणा है। तुम्बुरु बिल्कुल नारद की तरह लगते हैं देखने में। महती नारदस्यातः, नारद जी के हाथ में जो वीणा है उसको महती बोलते हैं। सारस्वतु कच्छपी, माँ सरस्वती के हाथ में जो वीणा है वो कच्छपी के नाम से। संगीत रत्नाकरी में सारंगदेव जी ने वीणा का वर्णन किया है, बहुत अद्भुत और सुंदर वर्णन है। दर्शने स्पर्शने तास्या भोग स्वर्गों का वर्गते, ये पहला, अर्थात वीणा को देखना, इसे स्पर्श करना, भोग स्वर्गों का वर्गते। वो क्यों है? दंडम शंभु, वीणा का ये जो दंडम है ये शिव है। उमा तंत्री ही, जितने तार हैं 4 और 3 7 तार हैं इसमें तो पूरे, ये पार्वती है। कुकुम्बहा कमलापति, ये कोने में जहाँ पे ये साज के सारे तार जुड़ते हैं ये विष्णु है। इंदिरा पत्रिका, ये गौड़ जो है ये महालक्ष्मी है। ब्रह्मा तुम्भी, इसे यहाँ रखकर बजाया जाता है, ये ब्रह्मा है। नाभि ही सरस्वती, जिस छेद पे ये तुम्भी टिका है ये माँ सरस्वती है। और यहाँ 2 जोड़ आते हैं, दोरका वासुकी, इस जोड़ को दोरका बोलते हैं। दोरका वासुकी जो शिवजी के गले का सर्प वो है इस जोड़ में। जीवा सुधांशु, ये जीवा है जिससे स्वर उठाना या कम करना पड़ता है, इसको जीवा सुधांशु चंद्र बोलते हैं। और ये फ्रेट्स हैं सारिका रवि, ये जितने फ्रेट्स हैं ये सूर्यदेव हैं। सर्वदेवमयी वीणायम सर्वमंगला, क्योंकि इतने देवों का इसमें वास है तो ये मंगल वाद्य कहलाती है। इस वीणा में 4 और 3 ये 7 तारे हैं और इस वीणा में 3.5 ऑक्टेव कवर करता है। और ये 3 जो हैं तारे ये ताल के लिए होती हैं, ये ताल है ये, और इसकी ट्यूनिंग है जैसे सा पा सा पा। तो ये मैंने ट्यून कर रखा है डी शार्प पे। जैसे मध्यम स्थाई है, ये मध्यम स्थाई है, ये तार स्थाई है। मंत्र स्थाई ये है, और ये अनुमंत्र स्थाई है, सानी दापा। वीणा इज an instrument that is played with the help of
a metal and a string, the fusion of these two create and produces a sound which is akin to human voice. सर, मैं जानना चाहती हूँ कि वीणा किस लकड़ी से बनी होती है और इसका मेंटेनेंस कैसे किया जाता है? देखिए, ये जैक फ्रूट ट्री के लकड़ी से बनाई जाती है। आजकल तो आधुनिक सुविधाएं आ गई हैं। पुराने समय में, आज से 100 साल पुराने, 95 साल तो इस वीणा को हो गए। पेड़ जब कटता है उसे कुतरा जाता है, 6 महीने पानी में, 6 महीने धूप में रखा जाता है, तत्पश्चात वीणा बनाई जाती है। अच्छा, इस वीणा में आप देखोगे तो वो 2 जोड़ हैं यहाँ पे, यहाँ एक, यहाँ एक, और बड़े रेयर कैटेगरी में एक लकड़ी में यहाँ से यहाँ तक जी, उसको बोलते हैं एकांड वीणा। जी, एक धड़ में बनी हुई, जी, नहीं तो इसमें 2 जोड़ आते हैं। जी, इसमें जो फ्रेटिंग होती है ये हनी बीव की हाइव है, उस पे कुछ औषधियाँ मिलाई जाती हैं जिससे कीड़े मकोड़े ना आ सके, और रंग के लिए काला पाउडर डाला जाता है, और इसे गरम करने के बाद जब ये लिक्विड बनता है, पानी को गिरा के उसमें डाला जाता है, फिर थोड़ा सा ठंडा होते ही उसको निकाल के इसमें फिक्स किया जाता है। फिर इसकी फ्रेटिंग शुरू होती है। ये फ्रेट्स हैं, इसके ऊपर लगाए जाते हैं, इसकी रीफ्रेटिंग होगी। तो ये बजाने का जो टेक्निक है उस पर डिपेंड करता है। अब जैसे 4-5 साल में अगर ये हो गई तो इसकी, और यहाँ पे इसके कोई भी आर्टिसन मिलेगा नहीं, साउथ ही ले जाना होगा या उनको बुलाना होगा। तो मेंटेनेंस इसमें बहुत ज़रूरी है और थोड़ी मुश्किल है, क्योंकि यहाँ ये साँझ दक्षिण का है, तो इसके जो इसे जो बनाते हैं वो भी दक्षिण से ही उन्हें बुलाना पड़ता है। बट अपनी ओर से ये देखना है कि भाई साफ सुथरा करके रोज इसकी, जैसे रोज पूजा आरती वगैरह होती है, तो वो चीज़ें करके इसे उस हिसाब से मेंटेन करना पड़ता है। बहुत सुंदर जानकारी दी आपने, थैंक यू। धन्यवाद। दोस्तों, हम सब जानते ही हैं कि संगीत का हमारे मन पर और शरीर पर बहुत ही सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। तो आइए जानते हैं सर से कि वीणा वादन का क्या प्रभाव पड़ता है और क्या क्या फायदे हैं। देखिए, ये वाद्य ऐसा है जिससे सकारात्मक ऊर्जा ही निकलती है। तो ये मैं खुद महसूस करता हूँ, शास्त्रीय गायन में या इस तरह के साज से जो धुन निकलती हैं, जो हम म्यूजिकोथेरेपी करते हैं, किसी भी थेरेपी में इट टेक्स टाइम। तो म्यूजिकोथेरेपी जो है वो नोइंगली अननोइंगली जब आप इसे साज का रियाज करते हो, इसमें थोड़ी देर के लिए भी इसके फन को सुनते हो या इसे बजाते हो, आज के दौर पे इसकी ज़रूरत ज़्यादा है। जी जी, सही बात। आज के समुदाय को इसकी ज़रूरत ज़्यादा है, क्योंकि एक प्रकृति है, प्रकृति के साथ जुड़ी हुई चीज़ है। जी, अगर इसे सुने हम और इसका लुत्फ उठाए तो मानसिक जो रक्त का चाप है या शुगर है या बाकी जो चीज़ें हैं वो अपनी अपनी जगह, बाकी काफ़ी रिसर्च चल रही है इसमें। देखा जाए तो देखो, इसमें 12 स्वर हैं, 12 आपकी राशियाँ, तो प्रकृति में तो ये सारी चीज़ें मिली हुई हैं। तो संगीत एक ऐसा माध्यम है जो हर चीज़ के साथ जुड़ा हुआ है। Vidushi Jayanti Kumarish is renowned Saraswati Veena player. Her Cup O Carnatic and Nostalgia series, which are the beautiful blend of inspiring stories and Veena, are very popular among kids too. Mr. Karsten Vicky is the most famous Rudra Veena player of India. He is from German origin but fascinated by Indian music and came to India. With the help of local artisans and artists of Kolkata, he makes Rudra Veena. We cannot overstate his incredible contribution towards Indian classical music. 7 जो नंबर है, 7 is always a very spiritual number. इससे 7 फेरे हैं, 7 सुर है, 7 दिन है, 7 रंग है इंद्रधनुष के। तो वीणा में भी 7 स्ट्रिंग्स होती है
एंड दैट इज़ अ वेरी स्पिरिचुअल थिंग आई थिंक. उसका भी कुछ एक रीज़न होगा, क्योंकि बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स में अलग अलग स्ट्रिंग्स होती है, जैसे कि गिटार में अलग, बेस गिटार में अलग स्ट्रिंग्स होती है, सितार में अलग स्ट्रिंग्स होती है, पर वीणा में 7 स्ट्रिंग्स होती है. और 7 का बड़ा एक कहते हैं 7 सीज, 7वां आसमान, तो 7 का एक बड़ा स्पिरिचुअल रीज़न है. Our country has enriched with a huge varieties of veena, from one-stringed instrument Ektara, Maharashtra, Tambura, Andhra Pradesh, Dotara, Assam, Bagliu, Gujarat, Ektara, Jammu and Kashmir, Bhajan Tambura, South India, Gotu Vadyam, Tamil Nadu, Datta Veena, Kachhiya Sitar, North India, Tuila, Orissa, Saitar, Kashmir, Israj, West Bengal, तंबूरा नॉर्थ इंडिया, सारंगा जम्मू एंड कश्मीर, गुजरातन सारंगी, जोगी सारंगी, धानी सारंगी, सिंधी सारंगी, सरिंदा, चिकारा, सारंगा, चिकारा, सानंता, सनत, चिकारी, रावण हत्ता, जोगी केंद्र, मांझी केंद्र, साज कश्मीर, किंग जम्मू एंड कश्मीर टू स्वर मंडल. There is also found a description about the 1000-stringed veena, Mahaveena, in the history of veena. Tanpura or tambura is also a string instrument. It provides support to the lead vocalist along with the other musical instruments. There are 2 subdivisions of tanpura based on the pitch of the male and female voice. और दोस्तों, जैसा हम सब जानते हैं कि वीणा सभी तत्वाद्यों की जननी है, तो मैं नील जी से जानना चाहूँगी कि इस पर आपके क्या विचार हैं। जी, जैसा आपने कहा कि हमारे भारतीय शास्त्रीय संगीत में जितने भी तंत्र वाद्य हैं उनकी जननी हम वीणा को मानते हैं. ये हमारी अपनी फिलॉसफी है, हमारा अपना इमोशन है, हमारी अपनी भक्ति है, या हमारा अपना ज्ञान है जो हमें गुरुओं से, हमारे बुजुर्गों से मिलता आया है. तो इस पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता कि ये भी वीणा है या नहीं है, लेकिन कुछ वाद्य यंत्र हमारे देश में, हमारे कल्चर में है जिसके टेक्निक गिटार से मिलता है. जैसे एक है विचित्र वीणा, उसको भी हम पिक्स की जगह पे उसमें मिजराब पहनते हैं. सेम मिजराब जो सितार या सुरबहार बजाने के लिए या वीणा बजाने के लिए जो पहना जाता है, मिजराब जो स्ट्राइकर है उसको पहनते हैं. हम इसमें गिटार बजाने के लिए पिक्स का यूज़ करते हैं. हमने ये भी देखा है कुछ लोग पिक्स की जगह पे मिजराब से भी बजाते थे. दूसरी बात कि जैसे हम स्लाइड करते हैं, हमारे पास स्टील बार होता है, उनके पास एक पेपर वेट होता था शीशे का या फाइबर का, डेवलप होता रहा. तो इसका जो टेक्निक है बजाने का वो करीब करीब सेम है. इसलिए हो सकता है कि यहाँ के जो कलाकार हैं उन्होंने गिटार को एक नया रूप देके उसमें कुछ एडिशनल कुछ और उसमें इम्प्रोवाइज करके उसको वीणा दिया. इसलिए जैसे विचित्र वीणा में भी जब हम स्ट्रोक करते हैं तो सामने की तरफ 2 स्ट्रोक होते हैं. सेम गिटार में भी सामने ही 2 स्ट्रोक होते हैं. ये तो सिमिलरिटीज तो हैं. अब इनको देख के वहाँ ये इंस्ट्रूमेंट बना है, इसका कोई ऑथेंटिक ऐसा कुछ प्रूफ नहीं है. एक चीज़ मैं ज़रूर बताना चाहूँगा, भारतीय शास्त्रीय संगीत बजाने के लिए इंस्ट्रूमेंट में जो क्वालिटीज़ चाहिए होती है वो सारे इस इंस्ट्रूमेंट में है. In the continuous stream of Indian classical music, the musical instruments that came with the foreign musicians also got assimilated. They may or may not have originated in India, but they became very popular and developed in India. Let's have a look on these string instruments. Sitar, Surbahar, Dilruba, Sarod, Shatatantri Veena, Santur, वायलिन, मोहन वीणा, सात्विक वीणा, पिनाकिनी वीणा, सारंगी, इसराज, हवाईयन गिटार. शास्त्रीय संगीत हमेशा एक अपनी अहमियत और अपनी खुशबू ले आता है.
चाहे वो कुछ भी म्यूज़िक हो, चाहे वो कंटेम्प्रेरी म्यूज़िक हो, चाहे वो पॉप म्यूज़िक हो, फिल्म म्यूज़िक हो या इवन वेस्टर्न म्यूज़िक हो। शास्त्रीय संगीत की एक अपनी एक खुशबू है एंड उसकी एक अपनी अहमियत है एंड ख़ासकर वीणा या सितार या सरोद या उस फैमिली के जितनी भी इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो इतने रिच साउंडिंग है। आई थिंक वो शुरुआत से ही उनकी जो उनकी माँ रही है, जो सरस्वती वीणा है, वो बाय इटसेल्फ हैज़ सच अ रिच ट्रेडिशन। सबसे ओल्डेस्ट इंस्ट्रूमेंट है, गॉडेस सरस्वती, माँ सरस्वती के जो इंस्ट्रूमेंट जो वो प्ले करती थी वो वीणा है। बट वीणा में जो प्लेयर होता है उसका पूरा शरीर उसमें शामिल हो जाता है। वो इस तरह से, क्योंकि उसका एक पोर्शन अपने पास रहता है अपनी गोद में, और दूसरा पोर्शन जो बड़ा वो होता है, जो जैक फ्रूट होता है, तो उसका बेस है वो ज़मीन पर रहता है। तो वो उस वजह से जो प्लेयर को पूरी अपनी शरीर की एक अंदर एक उसको शामिल करना पड़ता है, और वो मैं समझता हूँ कि एक बहुत ही बड़ी चीज़ है। बिकॉज जब आप मन से और तन से दोनों तरीके से एक इंस्ट्रूमेंट में अपना पूरा अपने आप को समेट देते हो, तो उससे एक अलग ही एक बात बनती है। A.R. Rahman's 2 Oscars in 2009 generated a new wave of interest in music among youngsters. There were more retailers of musical instruments than ever before. Shankar Mahadevan, successful music director and composer, actually trained to be a Veena artist in childhood. He started playing Veena at the age of 5 and he has been using Veena in his contemporary music. Tanjore is very famous for Veena and there Veena makers are facing so many problems like labor's problem. Full Veena making is a handwork and it takes 20 to 25 days to make a Veena, and workers charge 700 to 800 per day. These days, jackfruit wood and other materials are also very difficult to find. The manufacturers complained that once upon a time in the movies and serials, ladies and students were shown playing Veena, but for the last 20 years, no music director or filmmaker of Bollywood and even Tollywood has shown Veena playing in the movies. And also this is a very difficult instrument to master, so the popularity decreasing gradually. Somehow the electronic Veenas are also affected the demand of the traditional Veena. आजकल पूरे भारतवर्ष में जितने भी क्लासिकल म्यूजिक फेस्टिवल्स होते हैं, संगीत सम्मेलन होते हैं, उनमें से मुझे लगता नहीं कि 10 में भी वीणा को वो लोग बुलाते हैं। हर जगह सितार, सरोद, संतूर, वायलिन, यही सब चल रहा है, सारंगी। लेकिन वीणा का प्रयोग धीरे धीरे कम होता जा रहा है। ये एक बहुत बड़ा नुकसान है हमारी भारतीय संस्कृति का, और क्योंकि वीणा एक ऐसा वाद्य यंत्र है जो बहुत ही एंशिएंट है और जिसको माँ सरस्वती से जोड़ा जाता है। तो ये सिलसिला जो है कहीं ना कहीं रुक रहा है, जो संगीत के लिए अच्छा है। तो मेरी आज की जनरेशन से यही रिक्वेस्ट है कि आप कोशिश करें कि वीणा को भी सीखें, क्योंकि वीणा अपने में एक बहुत ही खूबसूरत इंस्ट्रूमेंट है और कंप्लीट इंस्ट्रूमेंट है। इसके ऊपर हर चीज़ अवेलेबल है, इन द सेंस के उसमें पूरी गायकी भी है, उसमें पूरी तंत्रकारी भी है, उसमें मील भी है, उसमें धमक भी है, सभी कुछ है। तो वो एक कंप्लीट इंस्ट्रूमेंट है और खूबसूरत इंस्ट्रूमेंट है। President Draupadi Murmu hosted a dinner on 9 September 2023 in the honor of foreign guests arrived in India for G20 summit. In the Bharat Vadya Darshanam concept, Indian musicians mesmerized the global audience by playing our national instruments Saraswati Veena, Rudra Veena, Vichitra Veena, Surbahar, Nal Tarang, Jal Tarang, along with 34 musical instruments related to Hindustani music, 18 instruments of Carnatic music and 34 instruments of folk music. The musical instruments of Vedic era have also been demonstrated there. These maestros,
who gave the heights to Veena playing. Let us take this tradition forward. Let us all together take a pledge to promote and popularize our national instrument Veena. So friends, this was just the tip of the iceberg and we have only touched the subject. We will surely come with more informative videos for you. Thank you so much for your appreciation. See you soon. Namaskar.